بہنوں کو اور بھائیوں کو میری اور میری فیملی کی طرف سے سلام پہنچے۔ آئے ہم اپنی عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم ابتدائی دعا کریں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور اس سے بڑھ کر اپنے خداوند یسوع مسیح کا، جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس کے وسیلہ سے ہم اکٹھے ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، اس کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اس کی تمجید کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمجید اور تعظیم کے لائق ہے۔ ہم ساری ماحول کو، اس پوری محفل کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں گے۔ اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور سنجیدگی اختیار کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا قادر ابدیت کے بعد سلامتی کے شہزادے، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرا شکر، تیری تعریف و تیری تمجید کرتے ہیں باپ، کیونکہ تو ہی تعریف و تمجید کے لائق ہے۔ تو بلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے خداوند، تو قادر مطلق ہے خداوند، تیرے شکر گزار ہیں زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں برکتوں کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، سانسوں کے لیے، زندگی کے لیے خداوند، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر تیری اس محبت کے لیے خداوند جو تو ہم سے رکھتا ہے خداوند، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند۔ اور خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند ان تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے خداوند، جو دور و نزدیک سے خداوند اس پلیٹ فارم کے ذریعے خداوند تیرے حضوری میں آئے ہیں خداوند، تیرے حضور اکٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم اے خداوند ایک دوسرے سے بہت دور دور آئے خداوند، بہت دور ہیں، لیکن اے خداوند تیری حضوری میں ہم ایک جماعت کی صورت میں آئے ہیں خداوند۔ اے خداوند اپنی اس پوری جماعت کو اے خداوند تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں۔ جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں اے خداوند تجھ سے ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، وہ جگہ اے خداوند ان کے لیے مبارک کر دیتا ہے اے خداوند، وہ جگہ اے خداوند تیرے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہو۔ ہر ایک خاندان کو، بہن کو، بیٹی کو، بھائی کو اے خداوند تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خداوند، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے خداوند۔ جتنی دیر ہے خداوند ہم تیرے حضور میں وقت گزاریں خداوند، ہمیں سنجیدگی کی روح اختیار کرنے کا فضل دے خداوند۔ ہم سنجیدگی سے خداوند تیرے حضور بیٹھے خداوند، سنجیدگی سے خداوند تیرے کلام کو سنے خداوند، اور خداوند روح کی سچائی سے خداوند تیری حمد و ثنا کریں۔ قادر مطلق آپ اے خداوند اس پورے ماحول کو، پوری عبادت کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند۔ تو ہماری رہنمائی کرنا ہے خداوند، جو بہنیں، جو بیٹیاں خداوند، جو بھائی خداوند تیری حمد و ثنا کرنے کو ہے خداوند، ابھی سے خداوند ان کو تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں خداوند۔ ان کے ہونٹوں کا نذرانہ تجھے پسند آئے، ان کے ہونٹوں کو چھو اے خداوند، وہ جو اپنے ہونٹوں کی قربانی تیرے حضور رکھنے کو ہیں خداوند، تو اسے قبول کرنا ہے خداوند۔ ان کی آوازوں کو چھو مسا کرے خداوند، تاکہ لائق طریقے سے خداوند تیری حمد و ثنا ہو سکے، کیونکہ خداوند تو حمد و ثنا، تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ قادر مطلق باپ اے خداوند تیرے بندہ کو اے خداوند تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خداوند۔ آج جو تیرا بندہ ہمارے ساتھ کلام کرنے کو ہے اے خداوند وہ کلام تیری طرف سے ہو اے خداوند، اور اے خداوند اپنی بندہ کو آپ کی طرح استعمال کر اے خداوند، ہمارے اے خداوند ہماری زندگیوں کو اے خداوند بدلنے کے لیے آج کا کلام ہو اے خداوند۔ اے خداوند یہ کلام رائے گا نہ جائے اے خداوند، شیطان اے خداوند اس کلام کو ہم سے چرا نہ پائے اے خداوند۔ ہمیں فضل دے، ہمیں خداوند سننے والے کان دے، تاکہ اے خداوند تیرے کلام کو سنے، اور اے خداوند اپنی زندگیوں کو اے خداوند اس کلام کے مطابق بہتر کرنے والے ہو سکیں، تاکہ اے خداوند تجھے پسند آنے کے درجہ تک پہنچنے والے ہوں۔ پوری عبادت کو، پورے ماحول کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں خداوند۔ اس نیٹ ورک کو اے خداوند جس کے وسیلے سے ہم جڑے ہیں خداوند، اس کو اے خداوند تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خداوند۔ اے خداوند کوئی اے خداوند ڈسکنیکٹ نہ ہو اے خداوند، کوئی بھی خداوند نیٹ ورک کی وجہ سے خداوند ہم سے خداوند علیحدہ نہ ہو سکے اے خداوند۔ اے خدا ہم سب مل کر، جڑ کر اے خداوند تیرے نام کو جلا دیں، تیری تمجید کریں اے خداوند۔ قادر مطلق باپ ہماری رہنمائی کرنا، ہماری مدد کرنا ہے خداوند۔
खुदा अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ खुदा, जो भी बोलूँ ऐ खुदा तेरी शान के मुताबिक हो, तेरी तरफ से हो ऐ खुदा, जो अल्फाज हो ऐ खुदा वो तेरी शाया निशां हो ऐ खुदा मेरी जुबान का ज़िम्मा है, मेरे होंठ का ज़िम्मा है खुदा, मेरी रहनुमाई करना है खुदा, मैं तेरा अदना सा बंदा है खुदा, तू है खुदा मुझे इस्तेमाल करता है खुदा, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, मुझे फजल दे के खुदा, खुदा लायक तरीके से खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाला हो। इस इबादत के पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ साथ रहना और हमारी रहनुमाई करना है खुदा। दुआ को सुनो, कबूल फरमा, मसीह यीशु को वास्ता दे के मांगते और पाते हैं, आमीन। एक बार फिर तमाम बहनों को भाइयों को इस मसीही महफिल में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावन की हम्दो सना की तरफ बढ़ें। इससे पहले कि हम खुदावन की हम्दो सना करें, मैं चाहूंगा कि दाऊद नबी का एक ज़बूर आपके सामने तलावत किया जाए, जो दाऊद नबी क्या कहता है इस हम्दो सना के हवाला से। लिखते हैं 100 ज़बूर। ए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। मैं चाहूंगा कि बहन अंजना अपना माइक अनम्यूट करें और हम बहन अंजना के साथ मिलकर खुदावन की हम्दो सना में बढ़ेंगे। और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ अपना अपने माइक म्यूट रखें, लेकिन अपने अपने घरों में बहन के साथ मिलकर खुदावन की हम्दो सना करेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करदाए विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करदाए विश्वास, जो विश्वास कर देने ओ बनने यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बनने यीशु दे दास, मैं पीछे नहीं हटना, मैं करना है विश्वास। 12 साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास वधाना, बददे जाना पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। 12 साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास वधाना, वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ बनने यीशु दे खास, जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ बनने यीशु दे खास, जो विश्वास कर दे ने ओ बनने यीशु दे दास, जो विश्वास कर दे ने ओ बनने यीशु दे दास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करदाए विश्वास। अब्राहम दी निचा नू मैं सीने दे विच रखना, लूत दी बीवी वांगू मैं हुण पिछे मुड़ नहीं तकना। अब्राहम दी निचा नू मैं सीने दे विच रखना, लूत दी बीवी वांगू मैं पिछे मुड़ नहीं तकना। जेड़े पीछे मुड़ के तकदे ने हो जांदे ने ओ नाश,
ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ। मैं पीछे नहीं हटना मैं करदा ऐ विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करदा ऐ विश्वास। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Beautiful. प्रेज द लॉर्ड। बड़ा प्यारा आपने गीत गाया। खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। इस गीत को हम अगर एक दो लाइंस में इस तरह कहें कि हमें जो ईमान में मजबूत रहता है, जो खुदावन की तरफ तकता रहता है, वो कभी गिरता नहीं, और जो ईमान में कमजोर होता है, पीछे मुड़ के देखता है, वो गिर जाता है। एक शागिर्द, एक मुझे बात याद आ रही है, एक शागिर्द जब खुदावन यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखता है तो कहता है, क्या खुदावन मैं भी चल सकता हूं? तो खुदावन ने कहा आ, और वो चला। लेकिन जब उसने शक किया, जो वो थोड़ा सा कमजोर हुआ, तो वो डूबने लगा। तो हमें वो उस तरह शक नहीं करना, हमें उस तरह कमजोर नहीं होना, हमें उसमें मजबूत रहना है, और वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो हमें हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें संभालता है। खुदा आपको बरकत दे बहन। अब मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी वफा से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। ओके भाई, एक मिनट, मेरा ही नाम लिया ना? जी बेटी वफा। ओके ओके। यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਕੂਰ ਦੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਦੁਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਠਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਠਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ,
यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया खावा ना दे स्वाद ले खाने खावा ना दे स्वाद ले खाने ओ ना वेचो ना एक गिरा मेरे वल तू छेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया आमीन Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beta. Now आपको बरकत आसिफ दे। आसिफ जी एक जी मिनट जी जी यार वो जरा नन्ही है मेरी वाइफ है बेगम हाँ मेरा कंप्यूटर ते ऑन कर दे जरा जूम मीटिंग ऑन कर दे ਉਹਦੇ ਤੇ मैं आके ना फौरन शुरू कर ਦਾਂਗਾ फिर टाइम नहीं जाया होगा मैं आ रहा चंद मिनटां च पहुंच रहा ठीक ओके ठीक हाँ जी ओके कंटिन्यू सॉरी चलो हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। खुदा आपको बरकत दे, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने ज़बूर गाया, ये ज़बूर मुझे भी काफ़ी पसंद है। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेतिया, बड़ा ही प्यारा ज़बूर है और आपने बड़े ही प्यारी आवाज़ में गाया। खुदा आपको बरकत दे। आए हम दो सना में आगे बढ़ते हैं और छोटी बेटी अनाया से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर खुदा उनकी हमदो सना करें। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क केनान को पहुंचा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क केनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, रख मजबूत हो जा, मेरे कल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, दिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बेघराना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना।
मैं मुरझाए लोग ये सारे, वो मुरझाए लोग ये सारे, तुझसे न मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। बडार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, आमीन वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बेटी अनाया बड़ी प्यारी आवाज में आपने गीत गाया, खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। मैं चाहूंगा कि हम इस गीत के 2 लाइनों पे गौर करें। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। ये कौन कह रहा है? ये खुदा का वादा है। खुदा का वादा है, जैसे वो मूसा के साथ साथ था वैसे ही वो तेरे भी साथ, यानी हम सब के साथ साथ रहेगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है आखिरी मिसरे में है, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। जब हम ना उसके कलाम से दाएं मुड़ेंगे ना उसके कलाम से बाएं मुड़ेंगे तो वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा। खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हमारे पास थोड़ा टाइम है जब तक भाई अपने घर तक पहुंचते हैं, अपने लैपटॉप तक पहुंचते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा सराफीन से कि वो कोई जो गीत वो गाना चाहती हैं मेरी बेटी उजाला के साथ मिलकर खुदा की हम दो सना में गीत गाएं। जी मेरा रब सोना दुआ मेरी सुनदा है, मेरा रब सोना ना जिया कोई है, ना कोई होना, ना जिया कोई है, ना कोई होना, दुआ मेरी सुनदा है, मेरा रब सोना। मैं दीवा की मसाल दी ओ बड़ा बेमिसाल जो बीमार सारा यसुला कमाले। मैं उदे नालो वध के कदी किसे नहीं छोड़ना, मैं उदे नालो वध के कदी किसे नहीं छोड़ना। ये दुआ मेरी सुनदा है, मेरा रब सोना दुआ मेरी सुनदा है, मेरा रब सोना। जीवांगा सदा तेरे लिए, मरांगा तेरे नाच, जीवांगा सदा तेरे लिए, मरांगा तेरे नाच, करांगा मुरादी तेरी दुनिया जांच, करांगा मुरादी तेरी दुनिया जहांच। मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भलोना, ना उदे जिया कोई है, ना कोई होना, दुआ मेरी सुनदा है, मेरा रब सोना। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। ब्रदर क्या हम कलाम हाँ
हाँ कलाम के लिए प्रेयर करें, दुआ करें और रीडिंग शुरू करें प्रेयर करके। मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैं दरख्वास्त करूंगा अगर भाई सेड्रिक या बाजी सुरैया इस दुआ में रहनुमाई करें। शुक्रगुजारी करेंगे हम इस हम्दो सना के लिए और कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा के बंदा को हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। भाई सेड्रिक अगर वो अवेलेबल हैं तो वो ठीक है, नहीं तो बाजी सुरैया आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। Praise the Lord जी। आए हम Praise the अपने Lord। सबक सीखते हैं। हेलो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। जी आपकी आवाज आ रही है सर। अब आपके हुजूर हाजिर हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के इस सारे मौके के लिए, सारी इस मिल बैठने के लिए, इस मुकद्दस महफिल के लिए आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये जो मौका अता किया कि हम आपकी हुजूरी में आए और आपकी इबादत करें। अब आप इसके लिए आपका शुक्र करते हैं और अब आप जो हम्दो सताइश आपके बच्चों ने आपके हुजूर में पेश की है उसके लिए आपका शुक्र करते हैं और मेहनत करते हैं कि अब आप आज की हम्दो सताइश के वसीला से अब आप जिन्होंने हम्दो सताइश की उनको भी बरकत अता कीजिए और हम जिन्होंने सुनी है इस हम्दो सताइश में शामिल हुए उन सबको भी आप अपने हुजूर से अब आप बरकतों से मालामाल कीजिएगा। और अभी जब हम अपनी इबादत के अगले मरहले में दाखिल होते हैं आपके कलाम को सुनने के लिए, तब आप आपकी मेहनत करते हैं कि हमारे जहनों को अब आप अभी से अपने पाखरू के कंट्रोल में दे दीजिए, हमारे दिलों की ज़मीन को आपका पाखरू नरम करे और हमारे जहनों को अक्ल व फ़हम से भरे, ताकि आपके कलाम के जो भी कोई भेद हैं अब आप हमसे पोशीदा न रहें, बल्कि आपके पाखरू की रहनुमाई के वसीला से आपके कलाम के तमाम भेद हम पर ज़ाहिर किए जाएँ। और अब आप जिस वसीले से आपका कलाम आज हमारे तक पहुँचने को है, हम ब्रदर जावेद को आपके हाथों में देते हैं, उनकी ज़बान की ज़िम्मेदारी आपके पाखरू के कंट्रोल में देते हैं और मेहनत करते हैं कि आपका बंदा आपके पाखरू की रहनुमाई से आज आपका जो भी कलाम है हमारे साथ शेयर करे। और अब आप आपके कलाम के वसीले से ना सिर्फ सुनाने वाले बल्कि अब आप सुनने वाले भी अब आप बरकत पाएँ। हमारे कानों को अपने रूह से मामूर कीजिए ताकि हमारे कानों से अब आप जो भी आपका कलाम हम तक पहुँचे, अब आप हमारे दिलों की ज़मीन में अब आप पूरी तरह जड़ पकड़े और हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाने का बायस बने। अब आप हम अपने जहाँ-जहाँ पर भी बैठे हैं, हम अपने घरों के माहौल को भी, दरो-दीवार को, हवा को, फ़िज़ा को आपके पाखरू के कंट्रोल में देते हैं और आप मेहनत करते हैं कि हर तरह की इंटरप्शन पैदा करने वाली स्पिरिट्स को अब हम आपके बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से दूर करते हैं। और अब हम आपकी आज का ये जो कलाम है बिना किसी इंटरप्शन के अब आप सुन पाएँ। इंटरनेट की सर्विस को आपके पाखरू के कंट्रोल में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं और मेहनत करते हैं कि किसी तरह की भी अब आप कोई डिस्टर्बेंस जो है इस इबादत के दौरान ना होने पाए। आपकी मेहनत है, हमारी इन तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनिए और कबूल कीजिए अपने बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से। आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें और आज जो हम कलाम की तिलावत करने को हैं वो है अमाल की किताब, उसका 12 बाब। और मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी वफा से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और खुदा के कलाम की तिलावत हमारे लिए करें। ओके भाई, बस अगर किसी और से पूछना, अगर किसी और ने करनी हो तो मुझे कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं कह रही जो भी कलाम की तिलावत करने को तैयार हैं अपना माइक अनम्यूट करें और कलाम की तिलावत करें। कोई करेगा और कि मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, मैं सिस्टर जी पंजाबी च करना, हाफ हाफ कर ली। ठीक है, फिर मैं उर्दू में करती हूँ। ठीक है, ठीक है। अमाल की किताब, उसका 12 बाब। मजीद रसानी। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा
ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान दुआ कर रही थी। पतरस कैद खाना से रहाई पाता है, और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठड़ी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदी नाम एक लौंडी आवाज सुने आई, और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा। आमीन। आगे से रंजना आप पढ़ो। हाँ जी सिस्टर, कितने वर्स पढ़ने? So 16 वर्ष से आपने पढ़ना है, 16 वर्ष ठीक है एंड सर, तक पढ़ना। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ਪਰ ਪਤਰਸ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਹੈਰੋਦੋਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੈਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਠਹਿਰਿਆ। ਹੈਰੋਦੋਸ ਸਸੂਰ ਅਤੇ ਸੇਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬਲਾਤੂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਰੋਦੇਸ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਤਰਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਦਾ ਸੀ, ना लेके जेरूशलम तो मुड़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने को उसकी बरकत हो। खुदा आप दोनों बेटियों को बरकत दे। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने, और मैं दावत देता हूं भाई जावेद को कि वो खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। हम सब खुदा के कलाम के लिए तालियां बजाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। Praise प्रेज the गॉड Lord। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। खुदा की तारीफ हो। जब काके ने आमीन कहा था तो उस वक्त मैं घर पहुंच गया था, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ।
अमाल की कलीसिया और अमाल की किताब का हम जायज़ा ले रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने 12वां चैप्टर पढ़ा है, तो मैं ज़रा वफ़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली आयत से दोबारा से पढ़ें। ओके मैम। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीह के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। बस ठीक है, आगे भी पढ़ना। बस ठीक है। अच्छा, हम 11वें चैप्टर के में पढ़ रहे थे कि कलीसिया अंताकिया में और कुप्रस में और फिनीके में किस तरह फैली। तो जब चर्च बढ़ता है, जब चर्च की तरक्की होती है, तो कलीसिया को खुशी होती है। नहीं, कलीसिया के पासबान और कलीसिया में एक किस्म का एक खुशी की अलामत है, समझा जाता है कि चर्च ग्रो कर रहा है। तो यहाँ हम यानी 11वें चैप्टर में हम देखते हैं कि चर्च ग्रो कर रहा है, और 12वें चैप्टर में हम देखते हैं कि अचानक एक बड़ी मुसीबत जो है वो कलीसिया पर आ गई है। क्या लिखा है? करीबन उसी वक्त। किस वक्त की बात कर रहा है? पहले वर्ष में लिखा है तकरीबन उसी वक्त। कौन सा वक्त था? वो वक्त था जब कलीसिया बढ़ रही थी। फिनीके में, कुप्रस में, ताकिया में बड़ा ज़ोर से खुदावन का काम हो रहा था। बरनबास भी उधर आया, उसने आकर उनको इनकरेज किया या उनकी हौसला अफजाई की उस चर्च की। तो हमने ये पिछले सैटरडे ये इस बात पे बात की थी। तो उसी वक्त यानी कि उन्हीं दिनों में क्या हुआ? करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। अब ये देखें, यूहन्ना का भाई याकूब कौन था? किसी को याद है? ये यीशु के 12 शागिर्दों में से था, और इसको ये दूसरा शहीद कहा जाता है कलीसिया में। मसीही कलीसिया में सबसे पहला शहीद कौन था जो अब तक हमने पढ़ा? किसी को याद है? स्टिफनस। शाबाश, थैंक यू। स्टिफनस है, स्टिफनस पहला शहीद था। ये क्या ये है? ये जो है ये दूसरा शहीद है जिसका हम याकूब का एक मिनट मुझे जरा ना, मुझे एक वर्स ढूंढने दें। ये वो याकूब है जिसने जब्दी के बेटे थे जिन्होंने कहा था कि हमें दाहिने और बाएं हाथ पे बिठाना है। किसको ये किसी को याद है इस बात का? हाँ, किसी को पता है इस बात? हाँ, नहीं, दसी कितने लिखा है? अच्छा, एक मरकस की इंजील में से निकालेंगे। मरकस है या मत्ती की इंजील? जब्दी के बेटे जेम्स, और हाँ यही है। ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील के 20वां चैप्टर उसकी 20वीं आयत में। कोई पढ़े जरा इसको। ओके। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, क्या तू चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। बस यहीं के आगे भी
थोड़ा अब आप पढ़ें मरकस की इंजील 10 बाब उसकी 35वीं आयत में पढ़ें। ओके। मरकस की इंजील 10 बाब उसकी 35 आयत। 35वीं आयत 35 तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दहनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। आगे पढ़े। अच्छा, आगे भी। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? आगे पढ़ना। ओके। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने आमीन। उनसे कहा, पढ़े। यीशु ने उससे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दहनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर आमीन। जिनके लिए तैयार किया मतलब जिनके लिए तैयार किया। अच्छा, चले, ठीक हो गया। बहरहाल उससे वो आगे आप अगर अलहदा से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि याकूब जो था 12 शागिर्दों में से था और यूहन्ना का भाई था, और ये दूसरा शहीद था। जब कलीसिया बढ़ रही थी, पहला शहीद स्तिफनस हमने पढ़ा, दूसरा शहीद याकूब है। और इस पर क्या हुआ कि इस पर जब चर्च बढ़ रहा था, चर्च बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, तो उस वक्त हेरोदिस बादशाह जो था उसने इसको कत्ल कर दिया। और बाज में से बाज पर उसने हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। तो जब हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात यहाँ रुकी नहीं है। हेरोदिस ने आगे क्या किया, जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। अब यह इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि पतरस को एक को कत्ल कर दिया गया, दूसरे को आप देखेंगे कि आपने पढ़ा अभी के जंजीरों से आज़ादी मिल गई। तो लेकिन कलीसिया क्या सिर्फ याकूब के पतरस के लिए ही दुआ कर रही थी कि याकूब के लिए भी दुआ कर रही थी? यकीनन कलीसिया जो थी वो याकूब के लिए भी दुआ कर रही थी। इसका ये मतलब नहीं है कि जब कोई मुश्किल आती है तो खुदा खुदा ने हमें छोड़ दिया है। देखें, हर किसी की कॉलिंग डिफरेंट है। पतरस का अभी वक्त नहीं आया था कि शहीद किया जाए, याकूब का वक्त आ गया था शहीद कर दिया जाए। और याकूब और यूहन्ना दोनों भाई थे। एक भाई शहीद कर दिया गया, दूसरा भाई पतमस के जजीरे में क्या हुआ था आपको पता है, जिसने मुकाशफा की किताब लिखी है ना। तो उसके साथ क्या हुआ था कि वो पतरस के जजीरे में आखिरी उम्र तक कैद रहा, और उसका वहाँ पे उसको खुदा ने रेवलेशन और मुकाशफा दिया, और उसको वहाँ पतमस के जजीरा जो था वो मतलब एक किस्म का बहुत बड़ी सजा समझी जाती थी जिसको उस जजीरे में भेज दिया जाता था। तो हम देखते हैं कि एक ही खानदान है, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक कत्ल कर दिया गया है और दूसरा क्या है, वो आखिरी उम्र तक रहा, और उससे खुदा ने अभी और काम लेना था। हर किसी की कॉलिंग जो है वो खुदा ने मुकर्रर की हुई है। याकूब का मरना जो था वो इसका मतलब यह है कि उसकी दौड़ जो थी वो मुकम्मल हो गई थी, और उसका चैप्टर जो था, खुदा ने जो काम उससे लेना था वो ले लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यानी एक
قتل کر دیا گیا, دوسرے کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا. دونوں کے لیے ہی کلیسیا بدل دعا کر رہی تھی. لیکن ادھر ہم پطرس کا ذکر پڑھتے ہیں, کیونکہ پطرس جو ہے وہ یعنی اس کا بائبل میں ذکر ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کلیسیا صرف پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی, لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ پطرس کے ذریعے سے خدا نے ابھی اور کام لینا باقی تھا, اور پطرس کا جو قید سے چھوٹ جانا ہے وہ کلیسیا کے لیے, ایک طرف کلیسیا کو دکھ کی گھڑی ہے کہ یعقوب مار دیا گیا ہے, اور دوسری طرف ایک اور مصیبت آئی ہے کہ پطرس قید خانے میں ڈال دیا گیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوشخبری آئی کہ خدا کے فرشتہ نے جب زنجیریں توڑ دیں اور جب پطرس جو آزاد ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو موت ہے وہ مسیح کی موت, مسیحی جو ہوتے ہیں ان کا خون جو جن جگہوں پر بہتا ہے وہاں پہ ایک قسم کا بیج بو دیا جاتا ہے, یعنی سیڈ کا کام کرتا ہے یا بیج کا کام کرتا ہے. شہیدوں کے خون پہ آج جو کلیسیا قائم ہے وہ کہاں, کس پہ قائم ہے؟ شہیدوں کے خون پہ قائم ہے. یعنی کہ یسوع چٹان ہے. یسوع نے کہا تھا کہ میں اس چٹان پر اپنا چرچ بناؤں گا. چٹان کیا تھی کہ وہ جب پطرس نے کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو یسوع نے کہا تھا میں اس چٹان پر, یعنی کہ جو ورڈنگ, جو لفظ یا جو اقرار پطرس نے کیا تھا اس پر میں اپنی چٹان بناؤں گا, کہ مطلب یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس چٹان پر جو کلیسیا بنائی گئی ہے اس پر کبھی عالم ارواح کے دروازے بند نہیں ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اور جو بھی اس وقت مسیح کی منادی کے خلاف تھے, انہوں نے ون آفٹر اندر, ایک کے بعد ایک کو قتل کیا, لیکن چرچ کبھی ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچ کبھی ختم ہوگا بھی نہیں جب تک یسوع آ نہیں جاتا. تو چرچ جو ہے وہ اٹ از بلٹ فار ایور. جب تک یسوع دوبارہ نہیں آتا چرچ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. چرچ اسی طرح چلتا رہے گا, گرو ہوگا. یہ چرچ جو ہے اس میں عجیب عجیب کام بھی ہوں گے اور خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. چرچ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. تو یعقوب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شاگردوں میں سے یعقوب جو تھا اس کو مار دیا گیا, اور اس کے خون کے قطرے جو تھے اس سے جو اس زمین پر جو گرے اس سے ایک بیداری اور ریولیشن آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ وہاں رکا نہیں ہے, چرچ بڑھتا ہی گیا ہے. نیا نامے کی کلیسیا ہم دیکھتے ہیں کیسے ود ان 100 ایئر پوری دنیا میں جو بھی جانے جاتے تھے ایریاز, وہاں پہ خدا کا کلام, یسوع کا کلام جو تھا اس کو وہ بولتے ہیں عطر ریختہ ہے, یعنی کہ خوشبو کی طرح ہے. اس کو آپ کانٹے دار تاروں سے روک نہیں سکتے ہیں. لوگوں کو مارنے سے, قتل کرنے سے یسوع کے منادی نہیں رک سکتی, کیونکہ یہ خداوند کا ارادہ ہے اور اس کا پلان اور منصوبہ ہے. تو لیکن جو چیلنجز ہیں وہ پوری تھرو آؤٹ, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو فیس کرنے پڑے ہیں. کبھی بھی کوئی بڑی آرام دہ مسیحی زندگی, خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو. کہاں لکھا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ میں اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو, میں دنیا پہ غالب آیا ہوں. چلو میں گوگل کر کے دیکھا. یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 33ویں ورس میں دیکھیں, پڑھے ذرا. کسی کو آواز آ رہی؟ ہاں جی, یوحنا کی انجیل اس کا ہاں وہ ہے یو ہیو 16 باب 35 آیت. اچھا 16 باب 33 آیت, ٹھیک ہے. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں
कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खाते जमा रखो, मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। हाँ जी, आमीन। हाँ, दुनिया पे मुसीबत उठाते हो, ये जो है ना, मुसीबत उठाना जो है, ये चर्च का हिस्सा रहा है, चर्च का खासा रहा है। ये ऐसा नहीं है ना, खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कोई वादा किया था कि मेरे पे ईमान ले आओ और बस सारे वारे ही न्यारे हैं और कोई दुख कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम पर। तो यहाँ तक कि मौत तक लिखा है कि मौत तक, जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हम पे मुसीबतें नहीं आएंगी या हमें कत्ल नहीं किया जाएगा, हम मारे नहीं जाएंगे, हर चीज़ में से चर्च गुजरेगा। लेकिन एक वादा हमारे साथ यीशु ने किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो हमें ये तसल्ली है कि हम मुश्किलात में से भी गुजरेंगे। तो हमारे लिए एक ताज है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं एक ताज है जिसकी तरफ मैं बढ़ा जाता हूँ। मैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कहाँ किसी को याद हो तो बताएं कि आई हैव रन द गुड, मैंने दौड़ को मुकम्मल किया। हाँ, ये है हाँ जी, मिल गया। हाँ जी, दूसरा तिमुथी उसका 4 बाब 4 बाब 7 6 में है। आए। हाँ, 6-7 पढ़ दे। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो कहता है कि मेरे पास एक मतलब मैं शुरू में क्या लिखा है कि मैं दोबारा से पढ़ना जरा शुरू में। क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, बस मैंने काफी, ईमान बस को। हाँ, बस काफी है। हाँ, देखे उसको मौत सामने नजर आ रही थी, अचानक कत्ल नहीं हुआ पौलुस रसूल, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मेरे कुर्बान होने का वक्त आ गया है, यानी कि उसकी डेट मुकर्रर हो चुकी थी कि अब उसको मार दिया जाएगा। तो एक एक दिन जो था वो गिन कर गुजार रहा होगा। लेकिन मतलब अगर कोई मेरे जैसा कोई आम आदमी हो तो क्या करेगा, वो जैसे जैसे मौत करीब आती देखता है तो बंदा क्या होता है, परेशान होता है और नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन पर जब पौलुस रसूल का जब कह रहा है तो कितनी खूबसूरती थे, और उसका ईमान जैसे दूसरों के ईमान को भी उसने ताज़ा कर दिया। हम जैसे कमज़ोर ईमान जो है उसकी बातें पढ़ के क्या होते हैं, और उसकी कमिटमेंट पढ़ के हमें तसल्ली मिलती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो मौत है या कत्लो गारत जो मसीहों पे हुई, वो आज भी जारी है। लेकिन कलीसिया आज भी जारी है, कलीसिया आज भी तरक्की करेगी, कलीसिया चलती रहेगी जब तक यीशु आ नहीं जाता। तो ये चीज़ें मसीह के नाम के और उसकी मनादी को कभी भी रोक नहीं सकी। हमने देखा कि बार बार ये कत्ल किए जा रहे हैं, इन पे अत्याचार हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई है, तो मसीहियों का जो कत्ल होता है कोई ना कोई लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं। हालांकि बेज़रर तालीम है, किसी के जुल्म, किसी पे जुल्म अत्याचार और कोई कुछ नहीं। मसीह क्या, मसीह पैगाम क्या है, मोहब्बत का पैगाम है, अमन और सुलह और सलामती का शहजादा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसको हमने, हमारे मुल्कों ने, सियासत ने, दुनिया ने, चर्चिस में उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में से निकाल दिया हुआ है। जो अमन का जो शहजादा है, जो उससे ये कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। तो जब भी कोई मसीहों पे जुल्म होता है, कि हालांकि मसीह किसी पे जुल्म नहीं करते, ना करना चाहिए, ना कर सकते हैं। मसीह की यीशु ने कहा था कि अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। तो मसीह यीशु ने ना कोई सेना बनाई थी, ना कोई आर्मी बनाई, ना कोई मुल्कों के पे कब्जे किए, ना कोई
जबर किया किसी पे ना, तो इसके बावजूद मतलब हम देखते हैं कि कलीसिया कैसे बढ़ रही है, कत्लो गारत उन पे हो रही है लेकिन कलीसिया बढ़ती जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोगों को ये पसंद, बात उस वक्त भी एक ग्रुप था जिनको ये पसंद आ रहा था कि क्रिश्चियनों पे जुल्म हो, और आज भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो इस बात को पसंद करते हैं कि मसीहों पर जुल्म किया जाए। तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला जो है मसीह के आने तक क्या होगा, ये चलता रहेगा। इसलिए हमें पौलुस रसूल की तरह कहना चाहिए कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ी, ईमान की कोई अच्छी कुश्ती लड़ी, मैं लड़ चुका, कहता है मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, ठीक है, ताकि यानी, और फिर वो कहता है कि एक ताज जो है उसका मैं मुंतज़र हूँ, वो मुझे दिया जाएगा। तो हमारी जो ये दुनिया जो है, बाइबल में लिखा है कि ये हमारा घर नहीं है। ये दुनिया क्या है, ये एक लाफानी चीज़ है, फ़ानी चीज़ है, सॉरी। और दुनिया जो है ये हमारा घर नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। तो एक तरीके से हमने सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन किस तरह खुदा के लोग जो हैं उनका जो मरना होता है वो एक बीज की तरह होता है, और वो बीज जब बोया जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। तो कलीसिया में जो शहीदों का लहू है, जो पहली कलीसिया में है, जो शहीदों का लहू है, उसने बुनियाद रखी कलीसिया के फैलने में, उसके वसीला से खुदा ने बरकत दी। और इसी तरह याकूब का जो मरना जो था वो भी शहीदों के लहू की अलामत है, और उससे कलीसिया की और तरक्की हुई। और जब हम देखते हैं कि इसका हमें आगे उसमें कलीसिया में बड़े बड़े काम हुए, इसके बाद देखते हैं कि जैसे उसको तलवार से कत्ल किया, और उसने देखा कि ये यहूदियों को पसंद आया। यह हेरोदिस जो था वो बड़ा विकेड, यानी कि बहुत जालिम और शातर चलाक किस्म का बादशाह था। ये वो हेरोदिस है जिस हेरोदिस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल करवाया था। ये उसका ग्रेट ग्रैंड सन कह सकते हैं, इसका परदादा, वो इसका परदादा था। ये एक टाइटल है जो चलता रहता था, हर बादशाह के साथ हेरोदिस लगा दिया जाता था। तो ये वो हेरोदिस है जो उस हेरोदिस का ये पोतरा समझ लें कि जो जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवाया था। तो अब हम देखते हैं कि ये भी अपने दादा की तरह या अपने बाप की तरह कह लें कि ये भी चर्च कलीसिया के खिलाफ ही इसका भी मंसूबा है। उसने देखा कि यहूदियों को ये बात पसंद आई है, तो कि वो उसने याकूब को मरवा दिया। तो उसने क्या किया, फिर और जुल्म किया कलीसिया के ऊपर। वो किस तरह जुल्म किया कि उसने पतरस को भी पकड़वा लिया, जो अब लीडर्स हैं। पतरस एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर था पहली कलीसिया में, तो उसको भी उसने गिरफ्तार कर लिया। पहले को एक को मरवा दिया और दूसरे को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। और देखा इस गिरफ्तार करने की वजह क्या बता रहा है कि उसने देखा कि यहूदियों को ये बात पसंद आई। तो आज भी बहुत सारे, यानी आपने देखा किस तरह मॉब इकट्ठे हो जाते हैं, लोग इकट्ठे होकर क्रिश्चियनों को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, और बहुत खुशी मनाई जाती है। लेकिन याद रखें कि खुदावन जो है वो ज़रूर अपने वक्त पे बदला देता है और देगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चौथी आयत में लिखा है कि और उसको पकड़ कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। अब इतना, यानी कि क्या कहते हैं, कड़ी निगरानी की गई उसके ऊपर, यानी कि इतनी सख्त पहरे में उसको रखा गया कि 4 फौजी जो थे, 4 सिपाही जो है, और 4 पहरों में रखा, यानी कि हर तरफ उसके सिपाही जो थे उसकी निगरानी कर रहे थे। तो और उसको बेड़ियां लगाई हुई थी, उसको हथकड़ियां लगाई हुई थी, और उसके बावजूद 4 पहरेदार जो थे उसके चौगिर्द थे, और रखा, और इरादा से के फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करेगा। तो लोगों के सामने पेश करने का क्या मतलब है कि वो लोगों के सामने, जैसे यीशु को लोगों के सामने पेश किया गया था, तो इसका इरादा ये था कि इसको भी लोगों के सामने पेश करके इसको, यानी कि कत्ल करने का
اس کو قتل کر دیا جائے گا. لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا پطرس کو. لیکن پطرس کا اس وقت ٹائم نہیں آیا تھا. اس نے ارادہ کیا، لیکن خدا کے ارادے انسان کے ارادوں سے بڑے ہیں، کیونکہ ہم آگے جب دیکھیں گے کہ کیسے اس کو آزاد کیا گیا. تو جو ہیرودس بادشاہ ہے اس کا ارادہ یہ تھا کہ پطرس کو بھی قتل کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. عید فصح کے وقت وہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ عید فصح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. اب بات یاد رکھیں کہ بہت دفعہ کلیسیاں جو ہیں جس طرح ان کو دعا کرنی چاہیے وہ نہیں کرتی. تو ایک دعا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری بہت ساری کلیسیاں میں ایک قسم کا نہ ہونے کے برابر ہے. بہت ساری اور ایکٹیویٹیز چرچز میں کی جاتی ہیں، فلانا ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا چرچز میں. تو لیکن جو دعا ہے جو وہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کو شرنک کر دیا گیا. لیکن جو دعا بائبل کے مطابق پہلی کلیسیا جو تھی وہ دعا میں مشغول تھی اور دعا میں رہتی تھی. اور جب ان پہ اتیاچار بھی ہوتا تھا، جب ان پہ ظلم ہوتا تھا، تو بیکاز وہ دعائیں کرنے والے لوگ تھے، اس لیے وہ مصیبتوں میں بھی نہیں گھبراتے تھے. دعا جو ہوتی ہے، پریئر جو ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر کے انسان کو، ہمارا جو اندر کا منش جو کہتے ہیں نا، انر مین، اس کو اسٹرینگتھن کرتی ہے. دعا سے ہمیں طاقت ملتی ہے، پاور ملتی ہے، اور دعا ہمارے خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اور جو وہ ہے تعلق جو ہے وہ قائم کرتی ہے، دعا کے ذریعے قائم ہوتا ہے. تو اگر کوئی چرچ گرو نہیں کر رہا تو اس میں ایک ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کلیسیا کیا ہے، دعا نہیں کر رہی، پریئر فل نہیں ہے. تو پریئر جو ہے دیٹ از لائک جیسے گاڑی کے لیے فیول ہوتا ہے، جیسے گاڑی کے لیے پٹرول ہوتا ہے، موٹر سائیکل چلانے کے لیے پٹرول ڈالنا پڑتا ہے، ویسے ہی جو ایک کلیسیا کی ترقی کے لیے، ہماری اپنی جسمانی روحانی ترقی کے لیے دعائیہ زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کو کہ بہت سارے چرچز نے نکال دیا ہوا ہے. یسوع نے کہا تھا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دو چیزیں کرتی ہے دعا جو ہے، ہمیں دعا آزمائش میں پڑھنے سے روکتی ہے، اور اگر ہم پڑھ بھی جائیں تو دعا جو ہوتی ہے ہمیں آزمائش میں سے نکلنے کا فضل دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو خدا یسوع نے یہ ہمیں کر کے دکھایا، وہ دعا کرتا تھا. اب اس نے کہا اب سوتے رہو، ہے نا. جب وہ ٹائم ہی آ گیا، جب اس کے پکڑانے کا ٹائم آ گیا تو ابھی بھی وہ سو رہے تھے. تو بہت سارے چرچز کیا ہے، وہ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں. بہت سارے پیرنٹس فادرز ہیں، دے آر ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ سو جاتے ہیں. تو مسیحی کلیسیاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چرچ خاندانوں میں، گھروں میں پرابلم ہے کہ جس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اگر پیچھے بچے بیٹھے ہوں اور وہ سونا شروع کر دے تو ایکسیڈنٹ ہی ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے. نہیں تو ہمیں خدا نے جو فادرلی فگر ہے، جو باپ ہے گھر میں، اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ قدموں پہ، اپنے گھٹنوں پہ رہے، جنگ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے لڑتا رہے، جاگتا رہے. اور کلیسیا جو ہے اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ اپنے پاسبانوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے دعا کرے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے ایک ریولیوشن آیا خدا. اس کے بعد کلیسیا پہ مصیبت آئی ہے، لیکن کلیسیا نے بے دل نہیں ہو گئی، تتر بتر نہیں ہو گئے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ نہیں گئے. وہ کیا کر رہے تھے؟ لکھا ہے بس قید خانہ میں تو پطرس کی نگرانی ہو رہی تھی، یعنی کہ پطرس قید خانہ میں تھا، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. تو یہ اب میں اپنی منسٹری سے بتا سکتا ہوں کہ میں باہر جاتا ہوں، جب منادی کرنے لوگوں کے ساتھ
यीशु की मुनादी शेयर करने, तो पीछे मुझे एक तसल्ली होती है कि मेरी वाइफ मेरी पीछे दुआ कर रही है, मेरे पीछे मेरे प्रेयर्स हैं जो मुझे मूव कर रही हैं। हमारा चर्च जो है, जो चाहे हमारे पासबान हैं, हमारे पास्टर्स हैं, वो बहुत बहुत दुआया ज़िंदगी उनकी, कई कई घंटे दुआ में ठहरते हैं। एक एक कलीसिया के एक एक मेंबर की उन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, नाम ले लेकर प्रेयर्स करते हैं, और उनको प्रॉब्लम्स का पता है कि कौन भाई या कौन बहन या किस खानदान में क्या मुश्किल है, तो वो उनके लिए दुआएं करते हैं। तो इसी तरह जो दुआ जो है वो बहुत ही ज़रूरी, जैसे चलने के लिए यानी कि कलीसिया की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी पर्सनल प्रेयर जो है वो ज़रूर घुटनों के बल जाएं, खुदावंद से आगे मिन्नत करें, उसके आगे गिड़गिड़ाएं, उसकी हमदो सना करें। खुदावंद यीशु ने हमें पैटर्न दिया हुआ है किस तरह दुआ करनी। तो कलीसिया जो थी वो बदिलो जान क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी, यानी पूरे दिल से पूरी जान से। कई दफ़ा होता है कि हम दुआ कर रहे होते हैं कि हमारा दिमाग कहीं होता है, लेकिन ये कलीसिया हम देखते हैं कि ये बदिलो जान, यानी कि सब कुछ उन्होंने खुदावंद के आगे रखा हुआ था, और उनकी पूरा फोकस जो था, उनकी पूरी लगन जो थी वो दुआ में थी। हाफ हार्टेडली नहीं, आधे दिल से नहीं, बल्कि पूरे दिल से खुदावंद से दुआ करें। और क्या लिखा है, टाइम है ना अभी मेरे पास, कितने टाइम मिनट है? आसिफ? जी सर, आपके पास टाइम है, कोई बात नहीं। और जब हेरोदिस 6वीं आयत में पढ़े जरा, वफा को नहीं सोने देना मैंने। ओके। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक एक मिनट, बड़ी मजेदार बात है इधर। लिखा है कि जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, यानी कि कत्ल करने के लिए उसने यहूदियों के सामने उसको पेश करना था, उसी रात, याद, ये पढ़े जरा ध्यान से देखें इसका क्या लिखा है, उसी रात। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। हाँ, और पहरे अब वाले ये देखें, दरवाजे, जी वो क्या है, ये देखें, खुदावंद यीशु मसीह की तसल्ली जो है ना, वो हमें किस तरह जिंदगियों में काम करती है, कितनी खूबसूरत और मीठी नींद होगी। आप अंदाजा करें कि अगर कोई और आदमी होता पतरस की जगह, तो उसका क्या हाल होना था। सुबह उसको पेश करने का मतलब है कि उसको कत्ल करना। उसने यहूदियों को दिखाना था कि भी ठीक है, ये देखो मैंने याकूब को मार दिया, अब मैं इसको भी मारने लगा हूं। तो जब पता है कि अगले दिन कत्ल हो जाना, तो बड़ी खूबसूरत पतरस की बात मुझे लगती है कि वो क्या कर रहा था, वो सो रहा था। लिखा है कि जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। अब 2 जंजीरों से बंधा हुआ है, अब पता नहीं उसको कैसे इतनी खूबसूरत नींद आ गई होगी। देखिए क्या लिखा है, 2 जंजीरों से बंधा हुआ, 2 सिपाहियों, कोई आरामदेह बिस्तर भी नहीं था, जंजीरें भी लगी हुई थी, सिपाही भी इर्द गिर्द थे। सुबह उसने मरने के लिए पेश भी होना था, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। इधर लोग दवाइयां ले लेके सोने की कोशिश करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। इस बात को समझें कि खुदावंद यीशु मसीह में हमारा कितना खूबसूरत खुदा है, जो मुश्किल में भी हमें तसल्ली देता है। ठीक है, तो जो तसल्ली का चश्मा जो है ना, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से वो जारी होता है। तो ये लिखा है कि अब पतरस के पास हर एक वजह थी परेशान होने की, हर एक रीजन थी उसके पास कि रात ना सोने की। ऐसे ही है ना भी, एक आदमी जिसके पास बेड भी नहीं है, उसका कई लोगों को अपने बेड पे ही नींद आती, किसी दूसरे बेड पे नींद भी नहीं आती। अब पतरस के पास बिस्तर भी नहीं है, तकिया भी हो सकता ना हो, 2 जंजीरें भी लगी हुई हैं, और सुबह उसको मार भी दिया जाना है। इर्द गिर्द सिपाही भी हैं, 4 सिपाही हमने जिक्र पड़ा कि उसके इर्द गिर्द, यानी कि हर वक्त कैद खान उसके साथ थे। तो इतने कठिन माहौल में, इतनी परेशानी में, वो क्या है, वो तो सो रहा है। उसको कौन सी चीज है जिसने उसको, मतलब इन सारी चीजों से
ऊपर रखा, यानी कि ये खुदा के पाक रूह की कुदरत का कमाल है कि वो मुश्किलात में भी हमें तसल्ली और इत्मीनान दे सकता है। तो ये तो तसल्ली की एक बहुत बड़ी एक मिसाल हमें मिलती है कि यीशु ने कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, यानी कि घबराया हुआ दिल जो है वो खुदा के किसी काम का नहीं है। तो देखते हैं वो अपने काम का नहीं, हम तो अपने बीवी बच्चों के लिए नकारा हो जाते हैं अगर हम घबरा जाते हैं। तो लिखा है कि अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत कम है। किसी को याद है ना ये बातें? अमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसीबत बड़ी है, इसका मतलब ये है कि हमारा खुदा से हमें कुव्वत का लिबास नहीं मिला, हमारे पास वो कुव्वत नहीं है जो कि मुसीबत के वक्त हमारी रहनुमाई कर सके, जो पतरस के पास था। तो जो पौलुस रसूल के पास था, जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं तो कुर्बान होने को जा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये मुझे कुर्बान कर रहे हैं, मैं तो अपना ताज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये देख लें कितनी एक मसीह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, उसका अंदाज़ा भी लोगों को नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है मसीही ज़िंदगी। तो हम ये देखते हैं कि पतरस जब 2 ज़ंजीरों में बंधा हुआ है तो पहरा लगा हुआ है, और वो क्या है, वो 2 लिखा है कि और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 ज़ंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। और पहरे वाले, यानी कि सोना जो है, ये तो आप नींद तो तभी आती है जब आपका माइंड, अच्छी नींद कब आती है? जब आप रिलैक्स हो, तसल्ली में हो। ऐसे ही है ना, एक परेशान बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन में, फियर में, तो वो तो नींद की दवाइयाँ गोलियां ही लेगा, क्या लेना उसने। तो लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो है सारी मुश्किलात के बावजूद क्या है, वो सो रहा है, मजे कर रहा है। और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे हैं। 2 सिपाही तो उसके इर्द गिर्द हैं, और पहरे वाले कैद खाना के दरवाजे पे भी क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत यानी कि सख्त किस्म की पहरा था उसके ऊपर। अच्छा, 7वीं आयत पढ़े जरा। ओके। कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। बस इतने काफी। अब ये देखें कि वो इतनी गहरी नींद सो रहा था कि फरिश्ते को आके उसको यानी कि झंझोड़ना पड़ा, हिलाना पड़ा। अगर वो कच्ची नींद सोया होता तो क्या होना था? जरा सी आहट होती है या किसी आवाज से बंदा उठ जाता है, या किसी खटखटा से, या मतलब कच्ची नींद, समझते हैं ना आप। लेकिन पतरस को गहरी नींद सो रहा था। उसकी वजह क्या है? हम क्यों देखते हैं कि वो गहरी नींद सो रहा था? कि वो नूर चमक गया, उधर लाइट हो गई, अंधेरा था, कोठड़ी है, एकदम नूर चमक गया, पतरस नहीं जागा। लेकिन और फिर क्या हुआ कि पतरस ने और फरिश्ते ने क्या किया, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा। आप अंदाजा करें कि एकदम नूर चमका है, उसको जाग नहीं आई। फिर उसको जो फरिश्ता जो है उसने उसकी पसली पर हाथ मारा, तो पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। तो मैं देखता हूँ कि उसको वो वाकई गहरी नींद सो रहा था, इससे हमें पता चलता है। और कहा कि जल्दी उठ, और जंजीरें उसके हाथ में से खुल पड़ी। तो जंजीरें जो हैं उसके हाथ में से खुल पड़ी। तो खुदावन के फरिश्ते ने जैसे ही उसको हाथ लगाया तो उसके हाथ से जंजीरें जो थी खुल पड़ी। कई दफ़ा हमें खुदा के टच की ज़रूरत होती है, उसके, यानी खुदा के, यीशु ने छुआ था ना, या हम यीशु को छुएं या यीशु हमें छू ले, बात एक ही है। खुदा यीशु मसीह ने कितने लोगों पे हाथ रखा और वो ठीक हो गए। नहीं तो खुदा यीशु मसीह जिसको छूता था वो क्या होते थे? लोग शिफा पा जाते थे। लेकिन एक जिक्र हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि जिसने यीशु को छुआ वो भी शिफा पाते थे। जैसे कि कितने साल थे उस औरत को खून जारी था? 12 38 साल। साल, 12 साल से।
ہاں تو وہ خون جاری تھا، اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا تھا تو وہ کیا ہوتا، اس کی جو بیماری سی وہ اس میں سے جاتی رہی تھی، زنجیریں اس کی ٹوٹ گئی تھی۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم تو ہم ایک قسم کے لاغر ہو جاتے ہیں، ایک قسم کے قید ہو جاتے ہیں، تو ایک جسمانی قید ہے اور ایک روحانی قید ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی عادتوں کے قید ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے گناہوں کے قید ہوتے ہیں، کی قید میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنی علتیں جو ہمیں لگی ہوئی ہیں، عادتیں ہیں، نشہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو کئی دفعہ یہ چیزیں ہمیں قید، کئی دفعہ ہمارے یہ جو، لیکن ادھر جو ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ٹچ کی ضرورت پڑتی ہے، خدا کے چھونے کی ضرورت پڑتی ہے، یا ہم خدا کے ہاتھ تک پہنچیں یا خدا ہمیں چھوئے۔ تو پترس جو فرشتہ جو ہے، فرشتے کا ہاتھ کا چھونے کا مطلب ہے خدا کے ہاتھ نے چھوا، تو اس نے جب اس کو چھوا تو کیا ہوا کہ اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ تو زنجیروں کا ٹوٹنا جو تھا، زنجیروں کا ٹوٹنا جو ہے وہ آزادی کو شو کرتا ہے۔ ہماری آزادی جو ہے وہ خدا جو ہے اس خدا کے ٹچ پر اس کا انحصار ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے جب نور چمکا، پترس کی پسلی پر ہاتھ مارا اور اسے جگایا اور اسے کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں، جب اس نے ہاتھ مارا اس نے اس کو ٹچ کیا تو کیا ہوا کہ اس کی زنجیریں اس کے ہاتھ سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ گرڈ یور لائنز، یعنی ہمیں کمر باندھ۔ پترس وہ ہے جس کو خدا نے کہا تھا کہ کوئی دوسرا تیری کمر باندھے گا، لیکن وہ ابھی وقت نہیں آیا۔ کسی کو یاد ہے یوحنا کی انجیل اس کا آخری باب پڑھے ذرا، اوکے، وفا، یوحنا کی انجیل لاسٹ چیپٹر میں دیکھنا کہاں لکھا ہے کہ کوئی دوسرا تیری کمر باندھے گا۔ کسی کو یاد ہے تو وہ 18 بتا دے، آیت میں پڑھے تجھ سے بیٹا۔ سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ بھی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، اور آمین جہاں آمین ہاں چلے آگے پڑھ دے چلے۔ اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ ہاں جی، تو ایک وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنی کمر خود باندھی ہے، اور ایک وقت تھا وہ ہے جب پاک روح اس کی کمر باندھے گا۔ جب وہ بوڑھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ جہاں وہ نہیں چاہتا وہاں بھی وہ اس کو لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کمر باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمر باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ تیار ہوتے تھے کیا کسی مشن پہ جانے کے لیے تیار، جب سپاہی تیار ہوتے تھے کیا جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتے تھے؟ نہیں، تو پولس جو خداوند یسوع مسیح نے جب اسے کہا کہ یہ دوسرا آدمی کون ہے، خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ کوئی دوسرا تیری کمر باندھے گا۔ دوسرا جو ہے وہ پاک روح ہے، وہ پوتر آتما جس کو بولتے ہیں، تو وہ اس کی کمر باندھے گا۔ یعنی کہ جہاں خداوند اپنی مرضی سے اس کو جہاں لے کر جائے گا چلا جائے گا، خداوند اس کو تیار کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی دوسرا شخص کا مطلب یہ ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے اسے کہا اٹھ کمر باندھ، خداوند کے فرشتے نے اس کو ٹچ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو وہ ایک ٹائم ہے کہ جب اس کو خود کمر باندھنی پڑ رہی ہے، ایک ٹائم ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کی کمر باندھے گا، بالکل جب وہ فلی طور پر اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر کرے گا، یا جب وہ اس کے ادھر ذکر ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو کوئی دوسرا۔ لیکن ادھر اس نے کہا، فرشتے نے کیا کہا کہ تو اپنی کمر باندھ۔ پھر فرشتے نے اسے کہا کہ تو کمر باندھ، کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ جوتی جو ہے وہ ہمیں مٹی اور گرد سے اور کانٹے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں جوتیاں کیا کرتی ہیں، جو ہمیں وہ کوئی چلنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہیں یا ہمیں چوٹ وغیرہ سے بچاتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ایک تو لباس کا ذکر کیا، اس نے کہ اپنے لباس پہننے کا مطلب ہے کہ خدا راست بازی کا لباس جس کو ہم بولتے ہیں، اور جوتی صلح کی جوتی کا بائبل میں ذکر ہے کہ صلح کی جوتی پہن لیں۔ تو
اس طرح خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو کمر بھی باندھ اور کیا کر جوتی بھی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اسے کہا اپنا چوگا پہن لے۔ ہاں ادھر چوگے کا ذکر ہے، تو اپنا چوگا بھی پہن لے، تو پہن لے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آگے پڑھیں 9ویں آیت میں۔ اوکے، وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ بس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آمین۔ اوکے، سو میں ادھر سب سے صلاح لینا چاہ رہا ہوں کہ اس چیپٹر کو ختم کرنا ہے یا ہم اس کو اگلے ویک کے لیے رکھ لیں، یہاں تک کہ ختم کر دیں جو ابھی تک پڑھا گیا ہے، یا اگلے ویک کے لیے رکھ لیں، کیونکہ مجھے پھر اس میں سے بھاگنا پڑے گا۔ اس کو اگر ختم کرنا ہے تو میں بہت ساری چیزیں مس ہو سکتی ہیں۔ کیا صلاح ہے کس کے؟ اگر کہتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں کرنا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، یا بھاگو نہیں، آرام ہیں؟ آرام آرام آرام۔ لو جی ایک بڑا ووٹ آ گیا، بھاگنا نہیں ہے پھر، ہے ہاں جی، نیکسٹ میں کر لیتے ہیں۔ ہاں نیکسٹ میں یہ ختم نہیں ہوگا آج کے دن میں نا، یہ ختم نہیں ہاں ہوگا، جی، ہاں مجھے جی، لگ ٹھیک رہا ہے ہے۔ کہ میں اسی یہیں تک ہم بات کر لیتے ہیں جو ابھی تک پڑھا ہے۔ تو وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ ایک جو غیبی طاقت آتی ہے نا، وہ ایک وقت کے لیے آتی ہے ہمارے لیے، زندگیوں میں کچھ خاص کام کرنا ہو تو ایک غیبی طاقت اس وقت ایک اس کو انکاؤنٹر ہوا ہے اس کا فرشتے کے ساتھ، لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھے، اور وہ فرشتہ جو تھا وہ فوراً اس سے وہاں سے چلا گیا، اور اس کے پیچھے ہونا جو اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اسے کہا کہ اپنا چوگا بھی پہن لیا، اور جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ اب اس کو یہ سمجھ آ رہی کہ جیسے کہ وہ رویا دیکھ رہا ہے، تو لیکن جب کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا، خدا نے اس کو آزاد کیا تھا، اور خدا نے اس کی جو تھی بیڑیاں یا اس کی جو شکل یا زنجیریں جو تھی وہ توڑ دی تھیں، اور وہ بخریت سپاہیوں کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود بھی وہ آرام سے قید خانہ سے نکل گیا تھا۔ تو خداوند کا کلام جو ہے، خداوند کا جو تسلی ہے جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتی ہے، روحانی آزادی بھی جسمانی آزادی بھی آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کے کلام سے ایک ہی بات اگر ہم سیکھ لیں کہ مسیح کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، آ بھی سکتی ہیں، لیکن دو چیزیں خداوند یسوع مسیح یا تو آپ کو اس مصیبتوں میں سے نکلنے کا فضل دے گا، تو یا اگر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو خداوند آپ کو اپنے جلال میں شامل کر لے گا۔ اس ادھر دو کیریکٹر ہم پڑھتے ہیں، ایک کو یسوع نے اپنے جلال میں شامل کر لیا جس پہ ظلم ہوا یعقوب کو، اور ایک کو اس قید خانہ سے نکلنے کا فضل دیا جو کہ وہ بلکہ اس سے زیادہ خطرناک لیڈر تھا کرسچن پہلے چرچ کا۔ تو پہلے تو ہیرودس بادشاہ کو پطرس کو مروانا چاہیے تھا، لیکن اس نے یعقوب کو مروا دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یعقوب کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا تھا اور پطرس کا ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں ادھر ہی آج ختم کرتا ہوں۔
تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. سب کو میری طرف سے سلام. اور اینی کوشچن؟ سلام سر جی، سلام. چلیں پھر اس کو، اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو ویسے میں سب کو ہیلو کر لیتا ہوں. سنیا کو بھی ویلکم. آصف سے بات ہو گئی ہے. سشیلا نظر آ رہی ہیں. ویلکم سشیلا. گاڈ بلیس. سنیا وہ کس نے گیت گایا تھا؟ وہ بچی جو اکیلی گا رہی تھی. انایا بیٹی. نایا کون ہے؟ عنایا ماموں میری بیٹی ہے صبا کی. اس کی تو آواز بڑی اچھی ہے. سچی ماموں؟ اس کی شکل دکھایا کس دن. ٹھہرے میں دکھاتی ہوں. عنایا اپنی شکل دکھانا. ٹھہرے میں آن کرتی ہوں. یہ رنگ ماموں. ٹھہرے میں آن کر کے دکھا رہی ہوں. ماموں میرا کیمرہ نہیں چل رہا، میرے فون میں بڑی گڑبڑ ہے. میں آپ کو اچھا پکچر بھیج دوں گی. چل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور وہ عروج نے آصف کی بیٹی کیا نام تھا؟ عروج ہے نا اس کا نام؟ اجالا. اجالا جالا. اجالا نے بھی بڑا اچھا گایا ممی ڈیڈی کے ساتھ. ممی کے ساتھ ہی گیا، ڈیڈی تو صرف بول ہی بیٹھے سن. چلے بہت اچھا ہے. خدا ان بچوں کو برکت دے. تو آمین جی. بیوٹیفل بیوٹیفل. میں گاڑی چلا رہا تھا لیکن میں بڑا انجوائے کر رہا تھا گیتوں کو. سب نے گیت اچھے گائے، لیکن اب چھوٹے بچوں کو جب گاتے سنتے ہیں تو تھوڑی سی اور کیا سمجھ کہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. تو چلیں بس پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کے اس بائبل اسٹڈی کو. تو اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے تو ایک دفعہ پھر پوچھ لیں یا بات کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر آصف گو بیک ٹو یو. گاڈ بلیس یو آل. چلیں آصف وائنڈ اپ کر دیں. ٹھیک ہے سر. گاڈ بلیس یو برادر. خدا آپ کو برکت دے، اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے. اور آصف آواز نہیں آ رہی. خدا آپ کو برکت دے. اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آخری دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور کلام برکات سے سب کو رخصت کریں. اور جو درخواست اگر کسی کی کوئی ہے تو وقت ہے، اپنا مائک انمیوٹ کریں اور وہ اپنی درخواست بھائی جاوید تک پہنچا سکتے ہیں. جی گلو مایا ہاسپٹل سے بی پی ڈاؤن نہیں ہو رہا تے او دے لیے پریئر کرنے.